Yes, dear students, good morning to all of you. I am Vijay Singh. I'm your science teacher, and today we are going to start a very fresh and new chapter from your science book, that is sound. This is chapter number 13, and this chapter will be coming in your final term also. This chapter is very important. You know, this chapter you will see in the higher classes also. So, very basic and very interesting activity-based topic is this. You know, you can in this chapter many activities are given. You know? Most of the chapter is covered with the activities, and these simple activities you can perform at your home and experience the general science. Very easy chapter is going. If you have, yes, so starting the chapter, all of you see, starting the reading section. First section में देखिए बेटा क्या है, all of you see. How do you come to know that a period is over in a school? You come to know easily that someone is at your door when he knock, or you hear the sound of the doorbell, है ना? Most of the time, okay, just wait. One thing is left. That I have to stop the annotations. Yes. All of you see, most of the time you can make out that someone is approaching to you just by hearing the footstep. बहुत ही simple activity से ना chapter को start किया गया है. As you can see, देखो जितनी भी एक्टिविटी थी, जैसे कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी डोरबेल, if someone rings, someone come at your home and rings the doorbell, है ना, तो उसकी जो साउंड है, you will hear the sound, और फिर आपको पता लग जाएगा कि अपने डोर पे कोई आया है ना. सिमिलरली जो है यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इफ समवन इज कमिंग नियर टू यू, देन यू कैन उसको जो है इजीली आप साउंड से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि समवन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू विद द हेल्प ऑफ साउंड ओनली, है ना. साउंड की हेल्प से अप्रोच कर, आपकी तरफ कोई अप्रोच करे तो आपको पता लग जाएगा. सिमिलरली यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? है ना. You must have experienced, or you must have played a game that is hide and seek, है ना. उसमें भी आप इसी तरह से खेलते हैं, आपको पता लग जाता है कि किस तरह से आप अप्रोच करते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ. ड्यू टू द साउंड ओनली, साउंड की हेल्प से ना, ड्यू टू साउंड ओनली यू आर एबल टू अप्रोच टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स in the game of hide and seek. Yes, so all of you see, some musical instruments are given here, all producing different types of sounds, all produce different types of sounds, like this is harmonium, all of you must have visited your music room, which is in your school के अपने music room जब आप visit करेंगे, you will see different types of musical instruments. All the musical instruments produce different types of sound. All the musical instruments, whether it is harmonium, whether it is tabla, whether it is sitar or a flute, all produce different types of sound, है ना. But there is one thing common. As a science student, आप इन सभी में एक चीज कॉमन देखेंगे बच्चों. क्या कॉमन देखेंगे बच्चों? आप ये देखेंगे, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग द साउंड, when these instruments are producing sound, they always show the vibrations. Some part of these musical instruments will show the vibration, then only the sound is produced. For example, जब हम हारमोनियम को प्ले करते हैं तो उसका जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है ना, फ्रंट वाला पोर्शन, इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, देन ओनली द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. सिमिलरली जो ये तबला होता है, तबले का जो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, तबले का जो ये स्ट्रेच, जो इसका जो मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, if you will see that when the sound is producing, it will vibrate. Similarly, जो सितार है, सितार के जो वायर्स होते हैं, they will vibrate and then only the sound is produced. Similarly, जो फ्लूट होती है, फ्लूट के अंदर भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, इसमें तो जो एयर पार्टिकल्स होंगे उनमें वाइब्रेशन होगी, then only the sound is produced. Are you getting my point? So
there is a very important relation between the vibration and the sound is produced. like like right now I am producing the sound. Right now I am producing the sound. If I will very slightly if I will touch my throat, मैं अपने थ्रॉट को या फिर जहां से मेरा वॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, वॉइस बॉक्स, जहां पे आपका विंड पाइप है ना, जहां पे जो आपका गला है, गले में एक थ्रॉट होता है ना, थ्रॉट या जो विंड पाइप होता है, इफ यू विल स्लाइटली touch the throat while speaking, you will see, you can experience the vibration producing in the throat also. Are you getting my point? है ना? If you will touch your throat while speaking, है ना, आप कुछ बज की साउंड प्रोड्यूस करें या फिर कुछ बोलेंगे, लाउडली बोलेंगे तो उसमें वाइब्रेशंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। अगर आप सॉफ्टली बोल रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस होंगी। आपको क्या करना है कि जब आप बोल रहे हो तो उस टाइम अपने फिंगर्स को ये स्लाइटली स्लाइटली अपने फिंगर्स को अपने थ्रॉट पे टच करना है, तो यू विल सी दैट यू विल एक्सपीरियंस सम वाइब्रेशंस ओवर देयर, सम वाइब्रेशंस ओवर देयर। तो क्या है बेसिक रीजन, क्या है साउंड प्रोड्यूस होने का? साउंड प्रोड्यूस होने का बेसिक रीजन होता है वाइब्रेशन। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही ज्यादा साउंड लाउड होगी। मोर द सॉरी more the sound is louder, more the vibration is harder, more the sound is louder, है ना? Since the vibrations are different in harmonium, tabla, sitar and flute, इनमें वाइब्रेशंस अलग अलग होती है, इसलिए इनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। The sound is produced due to the vibrations only, है ना? Sound is produced due to the vibrations only. Okay, students, continue करेंगे चैप्टर को। All of you see, sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear variety of sounds in our surrounding. Make sorry. Make a list of sound you hear in your surroundings. In the music room of your school, you can hear the sound produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. How is sound produced? How does it travel from one place to another? Now, very important questions are asked here. Very important questions are asked here. That is, how is sound produced? Sound किस तरह से produce होती है? How does it travel from one place to another? एक जगह से जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहां पर साउंड सुनाई दे रही है वहां तक साउंड किस तरह से पहुंच रही है? How the sound is reaching from or traveling from one place to another. Now, how do we hear the sound? How do we hear the sound? How we are able to hear the sound? Why are some sounds louder than the others? Some sound are softer, some sound are louder, है ना? Why is it so? So we shall discuss such questions in this chapter. We shall discuss such questions in this chapter. Okay, students. So in this chapter, we have seen that vibrations are the reason of the sound and how the sound is produced, how it travels from one place to another, how do we hear the sound, and why some sound are louder and why some sounds are softer. These things we will cover in this chapter, है ना? यही चीज जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। Okay, students, moving further in the chapter, all of you see, sound produced by a vibrating body. What is the heading? Sound produced by a vibrating body. Sound produced by a vibrating body. All of you see, touch the school bell when not in use. What do you feel? If you will touch the school bell not when the school bell is not in use, उस टाइम क्या फील होगा आपको? क्या किसी भी टाइप की वाइब्रेशंस आपको फील होंगी? कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी, है ना? You will not able to feel any types of vibrations. But now again touch it when producing sound. Can you feel it vibrating?
अब आप सबको वाइब्रेशन का मतलब पता लग जाएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले जो बेल है जब वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है उस टाइम आपको टच करना है उसको, तो उसमें कोई भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे। लेकिन जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो उसको आप जोर से रिंग कीजिए एक बार ना, जोर से बेल को बजाइए और फिर उसको हल्के से जो है ना स्लाइटली उसको टच करें, तो यू विल फील द वाइब्रेशन, यू विल फील द वाइब्रेशन। तो जो आप फील कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाइब्रेशंस बोलते हैं, दोज आर नोन एज वाइब्रेशंस। सो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाइब्रेट होता है ना, तभी क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस करता है। वेनेवर, जब कभी भी, whenever an object is vibrating, it will produce the sound. Sometimes the vibrations are very slow that we cannot hear the sound, and sometimes the vibrations are very hard so that we can hear the sound. Are you getting my point? जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। कभी जब वाइब्रेशंस हाई होते हैं तो उनकी साउंड हम सुन पाते हैं, और जब वाइब्रेशंस प्रॉपर्ली हाई नहीं होते तो एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू हियर द साउंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जब कभी भी वाइब्रेशंस होंगी तो उन साउंड को हम सुने, ऐसा जरूरी नहीं है ना, बिकॉज ह्यूमंस की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही वो जो है उन वाइब्रेशंस को कैच कर पाएगा और उन वाइब्रेशंस को सुन पाते हैं। अगर वो वाइब्रेशंस उस लिमिट से ज्यादा है तो भी हम साउंड को प्रॉपर्ली नहीं सुन पाएंगे, और अगर वाइब्रेशंस जो है उस लिमिट से कम है, दैट देन आल्सो विल नॉट एबल टू हियर दैट पर्टिकुलर साउंड। Okay, I hope all of you got the meaning of why we are able to, why some sounds are, why some sound are very loud and why some sound are very soft. If vibrations are very huge, बहुत ज्यादा vibrations हो रहे हैं तो साउंड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा huge amount में प्रोड्यूस होगी। और अगर अगर वाइब्रेशंस अगर स्लो है, बहुत कम वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, साउंड भी बहुत कम प्रोड्यूस होगी। तो जितने ज्यादा वाइब्रेशन उतनी ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। Let's see one more activity is there in the beginning of the chapter also. In the beginning of the chapter also, I told you that this chapter is very activity based chapter, very activity based chapter, and this chapter contains the activities, those activities you can perform easily at your home. ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको आप इजीली अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। ओके, लाइक व्हाट इज द एक्टिविटी, ऑल ऑफ यू सी, टेक अ मेटल प्लेट or a pen, hang it at convenient place. No need to read the activity, just see the activity. All of you observe the diagram. ये डायग्राम दिख रहा है बेटा आपको, ये देखो इस किस तरह से आपको क्या करना है, आपको एक पेन लेना है और उसको किस तरह से एक बार कहीं पर हैंग कर लेना है उसको। Now what you have to do, you have to take a stick and just beat the pen. पहले जब आपने उसको बीट नहीं किया है ना, जब उसको स्ट्राइक नहीं किया है, इस स्टिक से पेन को स्ट्राइक नहीं किया है, तब इस पेन को टच करें, टच द पेन, you will see, you will do not experience any types of vibrations in your hand. Slightly धीरे से उसको टच करें, तो उसमें कोई भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं हो रही होंगी। फिर क्या करें, जो स्टिक है, स्टिक की हेल्प से जोर से जो है उस पेन को स्ट्राइक करें, ठीक है, और फिर हल्के से स्लाइटली जो है उस पेन को टच करेंगे, एज तो यू विल फील द वाइब्रेशंस इन योर हैंड्स। क्या करेंगे बच्चों, आप अपने हैंड्स में क्या करेंगे, वाइब्रेशंस को फील करेंगे। जितना जोर से आप स्ट्राइक करेंगे उतनी ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज्यादा आपको वाइब्रेशंस क्या करेंगे, एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जितने आप सपोज करो आपने बहुत स्लोली उसको स्ट्राइक किया है ना, बहुत स्लोली उसको स्ट्राइक किया है, तो उसमें वाइब्रेशंस भी कम प्रोड्यूस होंगे, तो आपको बहुत कम जो है वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस होंगे अपने फिंगर्स पर। और बहुत जोर से उसको स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, और एज अ रिजल्ट यू कैन फील द वाइब्रेशंस वेरी स्ट्रांगली इन योर हैंड्स। तो वेरी सिंपल एक्टिविटी बेस्ड टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझना है बच्चों, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, we have to understand from this activity that when vibration is there, the sound is produced, or we can say that what is the reason of producing the sound.
साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे क्या मेन रीजन है बच्चों? साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे सबसे जो मेन रीजन है दैट इज द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अगर नहीं होंगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इट इज वेरी क्लियर, बहुत ही एकदम सटीक बात है, बहुत ही एकदम करेक्ट बात है। अगर वाइब्रेशंस नहीं होंगी बच्चों तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, जब वाइब्रेशन होंगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। दैट्स इट, ये आपको एकदम जो है बिल्कुल इस बात को समझ लेना है एकदम। Okay, students, one more activity is given in your activity. This all of you see activity 13.2 है ना, अपने बुक्स में भी आप एक्टिविटी देख सकते हैं और आपके स्क्रीन पे भी आप एक्टिविटी दिख रही है आप सबको बेटा। व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल एक्टिविटी बेस्ड है, यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम आल्सो। बहुत इजीली इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं अपने घरों में। क्या करना है आपको, यू हैव टू टेक अ ज्योमेट्री बॉक्स। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो आपको इस तरह से लेना है, और जो उसका लॉन्गर साइड है ना बेटा, लॉन्गर साइड, ये इसका लॉन्गर साइड है। इसके लॉन्गर साइड में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ रबर बैंड। रबर बैंड लेकर उसके लॉन्गर साइड में आपको क्या करना है, इस तरह से उसको बांधना है। फिर उसमें दो पेंसिल को इस तरह से इंसर्ट करना है। Yes, sorry. So what you have to do, you have to insert two pencils just like this in your rubber bands. After that, what you have to do, just उसको प्लग करना है एक बार ना, एक बार प्लग करना है, एक बार उसको होल्ड करना है, ऊपर की तरफ उसको होल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फिर उसको रिलीज कर दीजिए। तो यू विल सी दैट द रबर बैंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। द रबर बैंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जो रबर बैंड उस टाइम जो मोशन कर रहा है ना, रबर बैंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, एक बार अप जाएगा देन डाउन, देन वापस ऊपर आएगा फिर डाउन जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा फिर डाउन जाएगा। ये जो मोशन है ना बच्चों, दिस मोशन ऑफ द रबर बैंड, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई अगेन रिपीट, आपको इस एक्टिविटी सबको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, कई बच्चों ने तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म भी किया होगा, है ना, कई बच्चों ने इस एक्टिविटी परफॉर्म भी किया होगा। अब इस एक्टिविटी से आपको सीखना क्या है, वापस ध्यान से सुनेंगे। जब आप रबर बैंड को एक बार प्लग करके उसको एक बार रिलीज करेंगे, तो ध्यान से अगर आप रबर बैंड के मोशन को देखेंगे तो रबर बैंड अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। एक बार अप जा रहा है फिर वापस डाउन आ रहा है, फिर वापस अप जाएगा फिर वापस डाउन आएगा, ऐसे बार बार वो स्पीड से इस मोशन को परफॉर्म करेगा। ये जो मोशन है ना बच्चों, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, दिस मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। You can see it from here, है ना, यहाँ पे मेंशन की हुई है, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द वाइब्रेशन इज मेंशन्ड हियर, एज यू कैन सी दैट द टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब एक बार जो रबर बैंड है ऊपर मोशन कर रहा है, फिर नीचे मोशन कर रहा है, फिर ऊपर मोशन कर रहा है, देन वापस नीचे मोशन कर रहा है ना। तो ये जो मोशन है इसी को हम बोलते हैं द टू एंड फ्रो मोशन। The to and fro motion or back and forth motion of the object is called vibration. इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इस मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन भी बोल सकते हैं या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों, वापस रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों टर्म्स को ध्यान में रखना है। अगर साउंड वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये टू एंड फ्रो मोशन, अगर वाइब्रेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ये आपको टर्म्स याद रखनी है, टेक्निकल टर्म्स है, यही टर्म्स यूज होंगी, देन ओनली you will get the marks. If you write these terms, then only you will get the marks. दोनों टर्म्स अच्छे से आपको याद रखनी है। कौन कौन सी टर्म है, टू एंड फ्रो, और या तो टू एंड फ्रो लिख दीजिए या फिर क्या लिख देंगे, बैक एंड फोर्थ। तो इस मोशन, इस पर्टिकुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, सो व्हेन टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। When it stops vibrating, it does not produce the sound. ठीक है ना, तो जब साउंड प्रोड्यूस कब होगी, साउंड इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन the vibration is there. If there is no vibration, no sound is produced.
Sound is only produced when there is vibrations. Okay, students, I hope all of you understood what I'm trying to explain. That's all for students. That's all for today. Thank you very much. Have a good day.